And at this time, when there was a complete turmoil during this period of 2020, we were visiting and revisiting a lot of alternative mechanisms and models of education system, which we have been talking about aloud in the previous years. We have received this policy of national education, which is known as National Education Policy 2020. And I think this policy is having all the coordination, is also showing a coordination between the school education and the higher education, because it's getting an advancement over that. But we have heard, and I think all of us must have read about the about this draft. I hope all of you have read it. आप सब लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा. और this policy, which we are expecting to make and raise the concern for each and every one of us, is looking forward towards the career and towards a change that is expected towards creating the employability, generation of the employability, and transformation of the youth, which is much more demanded. There were a lot of challenges that the youth of this country was facing, and a lot of problems that we were, despite of having a lot of, putting a lot of efforts as a teacher, we were facing a lot of challenges, like we were not able to make out the youth which is expected and the way they were expecting to become after completing their graduation and post-graduation. So all these things were the major challenges. Keeping that in mind, this program of NEP, creation of the awareness regarding this NEP, because it brings out a major reform. It demands the teachers, it demands the higher educational institutions, it demands the staff of the university, it demands the parents, it also demands the students to learn new techniques, to learn and to develop different aspects there, because the changes are going to be implemented and are being implemented by the majority of the universities and higher educational institutions these days throughout the country. So there was a dire need that everyone should be aware about this program, about this policy. They must learn what kind of policy it is, how it has to, what are the basic objectives behind this policy, the drafting of this policy, and what major changes are going to take place through this policy, and what we all are supposed to do. So all these awareness campaigns were started by the Ministry of Education and by the UGC and the various other recognizing institutions of our country, and that is how it is gaining pace throughout the country. And a lot of workshops we have also organized, and in this series again we have kept one more session, one more one-day workshop on the implementation of the NEP 2020. What will be the key components of the transformation and all these? And for this, Professor ADN Vajpayee ji, the Vice Chancellor of Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, Chhattisgarh, he will be there to deliberate on this topic, because many of the things they have already implemented in their own institutions, they are developing it, and many work have also been done by all of us. So on the behalf of this UGC-HRDC Bhagat Singh Mahila Vishwavidyalaya, on the behalf of all the staff and the family of the BPSMB, I welcome each and every one of you in this workshop. And I hope that you have a lot of takeaways from this workshop. I could see my very learned and respected teachers from my own university. Professor Mahesh Thadeep ji is there, and Ajit ji is there, and again I could recognize many of them. Matthew ji is there, Pavan is there, and Harinder Pal ji is there. जो बच्चे एडिट दिए गए उनको बुला के बच्चे करेंगे कि जी, विवेक जी भी हैं, नायक जी, सब आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी
जो प्रतिभागी इस कार्यशाला में हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी सवाल, रवि सर इज ऑल्सो देयर, रवि सर हैज जॉइंड सर, आपका भी स्वागत है और सब लोगों के, और हम चाहेंगे कि अगर आपके कोई प्रश्न है इन सब चीजों को लेकर तो आप सर से वो प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं. He will be joining. Actually, he was traveling and due to some network problem, he, he will be there within 5 minutes with us. Otherwise, आप लोग जैसे देवकांता जी, you want to say something? Dr. Devkanta. You have raised your hand. शायद गलती से कर गए हैं. अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हो, if you have any questions related to the NEP and other things, you may please type it in the chat box. आप chat box में टाइप कर सकते हैं और वो हमें भेज सकते हैं.
नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीच में। आज के हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि हैं आचार्य श्री अरुण दिवाकर नाथ जी वाजपेयी, ऑनरेबल वाइस चांसलर of Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, Chhattisgarh, is with us. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शेफाली जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप क्लैरिटी है सर, विजिबिलिटी भी है और ऑडियो भी बहुत क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो सर आपकी अनुमति हो तो हम स्टार्ट करें इसे? बिल्कुल शुरू कीजिए, बिल्कुल शुरू कीजिए। धन्यवाद सर। So let us welcome our very honorable, very revered Professor Adrian Bajpai ji, as we have already informed you about him, and we welcome sir to you on this platform, and we extend our heartful thanks to you for sparing your very valuable time despite of being so engaged and busy. You have accepted our invitation to speak on a very important topic, how to implement that national education policy these days. And I think with a spectacular speaker, a person par excellence, who is a noble soul, very humble, spiritual, very pious, and a very positive person. It's an honor for all of us to have you here, sir, on this online virtual platform in our HRDC, in this जिसको हम पावन भूमि कहते हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इनकी पावन भूमि पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। Thank you. I, on the behalf of our Honorable Vice Chancellor, I welcome our chief guest and all the participants of this program on this today in this one-day workshop on the very talked about, very discussed about these days national education policy. And before we proceed and invite and listen to Professor Bajpai ji, let me take this privilege of introducing him with all of you. He is a professor and is teaching in economics, and he's an economist, and above all he is a person who is spiritual and a very noble soul, a very pious and a positive person. He is a spectacular orator and a speaker, and I think you will find him always very cool, calm, and discussing about the things with a spiritual tint in everything he discusses about. He has the command over the many languages like Sanskrit, Hindi, English, and has been the vice chancellor constantly for the five times in the different universities, and he has been holding the various positions, and the description about his details of holding the various positions is very long, but I would like to share few with all of you, because I think if I keep on detailing his achievements and his work that he has contributed in the field of education, and particularly in the higher education, and also in the national level, in making all the things and doing the things, I think it will again take one session to discuss about him. He has been talking about the NEP since the draft was circulated, and constantly he has analyzed that policy. He has been a part of that policy system, and also he has contributed through the various awareness sessions throughout the country on how to implement and what basically this national education policy is and how it has to be done. Apart from all that thing, I would like to share the few details about him. He is presently the Vice Chancellor of Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur, in Chhattisgarh, and he has been the former Vice Chancellor of Himachal Pradesh University, Shimla, for the 2 terms, and also of the Avdesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh, during the year 2003 to 2007, and also he had been the Vice Chancellor of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gram Udyog Vishwavidyalaya, Madhya Pradesh.
He is the council member of the Association of Commonwealth University London and council member of Australia India Education Council, Ministry of Human Resource, Government of India, and the Secretary General of Association of Indian Universities, New Delhi. And he was also the founder member of that, and he is the honorary secretary and treasurer of Indian Economic Association, member of the Central Advisory Board of Education, Committee on University Reforms, Ministry of Education, Government of India. He has been the president of the Madhya Pradesh Economic Association, Bhopal, Madhya Pradesh, and president of Rashtriya Samaj Vigyan Parishad since 2018, and the member of the Deen Dayal Upadhyay Sanitary Celebration Committee, which was chaired by the Honorable Prime Minister of our country, Mr. Modi ji, and member of the Mahatma Gandhi 150th Anniversary Celebration Committee, Government of India, which was again chaired by the Honorable Prime Minister of our country, and member of the National Foundation of Communal Harmony, Government of India, which was chaired by the Honorable Union Home Minister, and patron of the Rani Durgavati Research Center, Vidya Bharati, Jabalpur, patron of Nanaji Deshmukh Center for the Skill Development, Vidya Bharati, Jabalpur. He is the visitor nominee in various universities throughout the country, and is also the member of the various search committees. Gee, I know, sir, I'm just summing up. I know I cannot dictate all of the things. It will take me 1 hour to describe what achievements and what contribution he has made. But I think if I will not devoid you of the time, which I think we should spend on listening to him, sir, to him. And I welcome on the behalf of all the participants of this group. Uh, uh, and on the behalf of all the authorities of the university, and on the behalf of this university and HRDC, sir, we welcome you, and we are desperate to listen to you. And I think a lot of things we will be taking away to learn about how to implement this NEP in our own institutions. Welcome, sir. Over to you, sir. Acharya Sri Pranam. नमस्कार. बहुत धन्यवाद शेफाली जी. Inviting a very session on education policy, as well as actually what I am. So many, you see, I can't say there are achievements, but also some of the indicators of my personality in such an elaborated manner, in a systematic manner. So it's a great job you have done. I think it's your love and respect which what compelled you to like this. Otherwise, I deserve elaborated description about. I'm keeping it was prepared and presented. It was a 467 pages draft, which I had to see carefully read, discussed, and also spoke about. And since this national education policy has come into existence by March 20, when it was just accepted, and the very first DC press conference, which was conducted by the then Education Minister Nishank ji, accompanied by Mr. Prakash Javadekar ji, and both the secretaries, Amit Khare and one madam. I am just keeping in touch with the latest developments of national education policy. This is one policy
which has aroused so much interest of the nation, in which not thousands but lakhs and lakhs of people were involved. They were educationists, scholars, political leaders, students, panchayat, sarpanch and many persons. Everybody was involved so far as finalizing this national education policy, because it was the need of hour. In 1986, we had new education policy, and so many changes were taken place in education. But this national education policy is national in nature because it is all comprehensive. It encompasses school education and well before school education, middle level education, and higher education means post higher education also, which includes research and everything. Many structural changes have also taken place in this national policy. It's inclusive in the nature that it's including formal and informal education. It has a national coverage, means all 776 districts of the country must have some big mega higher education institution. It's inclusive in the sense that it is transdisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary. There is no place of silos in this national education policy. It's included in the sense that it provides a compound of classical traditional mode of teaching and distance mode of teaching with use of artificial intelligence, MOOCs, lectures on Swayam Portal, that too is included. And it's inclusive in the sense that it gives full importance, complete importance to our teaching, different layers of teaching, and research as well. It's inclusive in the sense that it gives importance to almost all subjects, including our language. मातृभाषा में अध्यापन करने की बात पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आई है। अभी तक भाषा के विषय को लगभग छोड़ ही दिया गया था, स्पष्ट रखा गया था। मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन अनुसंधान की बात है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी लोग बजट प्रोविजंस के लिए परेशान रहते थे, कितना पैसा कहां से आए, इन्वेस्टमेंट कहां से हो। 6% of GDP is to be invested in education. That target is also fixed by Government of India, and it is inclusive in the sense that it includes different types of institution within India and outside India. It's not going to make totally local, regional type of education. It gives invite to Ivy League universities, and with top 100 universities of the world can come open their institutions here, campuses here, so that they can develop some sort of competition over here, and the race which our students going outside, a lot of financial remittances were there of our
hard-earned money being invested outside, maybe in European countries or states or any other developed countries. So if they are coming and opening their campuses here in India, those psychological trauma as well as financial outflow of resources can be stopped in one go. So it has got its own philosophy, it has got its own strategy, it has got its own implementation mechanism. So far as formulation of policy is concerned, I think lot of sincerity, lot of care has been taken by the policymakers. Scientists like Kasturi Rangan was chairing this committee, and about 15 members were there, all were educated persons. But today Shefali has asked me just to discuss some issues related to implementation of this national policy, because more than 2 years have already passed, and till date so many doubts are being created, and there are two types of states. One type of states are being governed by BJP-led government, and another type of states are not being governed by the BJP-led governments. क्योंकि उच्च शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है, मैं फेडरल सिस्टम पर भी आजकल काफी बोल रहा हूं, उसकी चुनौतियां क्या हैं। यद्यपि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, लेकिन एक जागरूक नागरिक और जागरूक प्रोफेसर होने के नाते मैंने उसमें कुछ काम किया है। अभी इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधी स्टडीज की कॉन्फ्रेंस थी कोल्हापुर में, वहां मैंने इसी विषय पर मधुकर श्याम चतुर्वेदी व्याख्यान दिया था। तो फेडरल सिस्टम की बात आती है तो 3 प्रकार की सूचियां हमारे पास आती हैं। एक संघीय अनुसूची है, दूसरी राज्य की अनुसूची है, और तीसरी जो है वो समवर्ती सूची है। इस शिक्षा जो प्राइमरी मिडिल एजुकेशन तो स्टेट लिस्ट की विषय है, और हायर एजुकेशन समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो समवर्ती सूची होने का लाभ ऐसी सरकारें उठा रही हैं जहां पर कि बीजेपी की सरकार नहीं है। अब मेरा पहला प्रश्न चिन्ह और प्रश्न चिन्ह का उत्तर यही है, भाई शिक्षा को राजनीति से अलग करिए। शिक्षा पे न तो बीजेपी को राजनीति करना चाहिए, न कांग्रेस को, और न समझिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टी उसको करना चाहिए। लेकिन अगर राजनीति हो रही है तो उसको समझबूझ के साथ में दूर करने की कोशिश करना चाहिए। कुछ राज्यों में बहुत तेजी से काम हुआ, जैसे मध्य प्रदेश को एक हम मानते हैं, वहां पे टास्क फोर्स कमेटी बनी थी, उसका सदस्य था, बाद में उच्च सदस्यीय दल का मैं चेयरमैन भी रहा। वहां पर इसको इम्प्लीमेंट लगभग कर दिया गया है, और जब जब जरूरत पड़ती तो सलाह मशवरा लेकर उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन बहुत से राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ में भी काम शुरू हो गया है, यहाँ की टास्क फोर्स कमेटी के मैं सदस्य हूँ, यहाँ पर भी काफी तेजी से काम हो रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज का फॉर्मेशन हो गया है, सिलेबस का बन गए हैं। अब ऑर्डिनेंस जो चेंज होना था वो चेंज करने के बाद यहाँ पर भी काम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से काम हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से काम हुआ है, हरियाणा में बहुत तेजी से काम हुआ है। लेकिन वही कुछ प्रांत हैं जिसमें कि केरल का नाम लूंगा, वेस्ट बंगाल का नाम लूंगा, राजस्थान का नाम लूंगा, वहां पर काम जो है वो तेजी से नहीं हो पाया। अभी देखिए जम्मू कश्मीर की भी बात आ रही है, वहां पर भी जो है इसको लागू किया गया है, एक सज्जन ने मैसेज किया है। तो मैं केवल इतनी ही बात कहना चाह रहा था, जहां जहां पर समझिए केंद्र शासन
का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, चाहे पार्टी के माध्यम से या चाहे उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां पर इसको हम लागू कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो शासन के आधार पर हम लागू करें, मुझे इस बात में कुछ अच्छा नहीं लगता है कि शासन ने कह दिया, हमने लागू कर दिया, जैसे कि हम शासन के कोई मुरीद हो, कोई गुलाम की तरह हम काम कर रहे हो। हमें तो एक अंतस्फूर्त एक प्रेरणा मिली है, हमको एक सुविधा मिली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, इसके आधार पर उपयोग करना चाहिए। तो आइए कुछ समय में शनै शनै बात करते हैं। सबसे पहला काम कोई हमसे पूछे कि क्या करना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, बहुत से लोग मिलेंगे। कदम उठाना है ना, रोड मैप तैयारी करना है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? तो पहला कदम है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने का, आईडीपी जिसको कहा गया है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये 15 और 20 साल ऐसे इसमें विभाजन किया गया है। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान कितने साल का हो, मुझे क्षमा करेंगे, मैं चाय पीते जा रहा हूँ क्योंकि लंबी यात्रा करके यहाँ पे आया हूँ। 15 साल की रोड मैप तैयार करना। 15 साल बाद आप अपनी संस्थाओं को कहाँ देखना चाहते हैं? 15 साल बाद हम अपनी संस्था को 3 संस्थाओं में विभाजित रूप में देखना चाहते हैं। हमारा स्वरूप क्या होगा? हमारा स्वरूप या तो रिसर्च सेंट्रिक यूनिवर्सिटी रूप में होगा, टीचिंग सेंट्रिक यूनिवर्सिटी रूप में होगा, या फिर डिग्री ग्रांटिंग बड़े कॉलेज के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं। 3 लक्ष्य लेकर के अभी से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है। इसके लिए बहुत सारे वर्टिकल्स होंगे। इसकी एकेडमिक प्लान बनेगा, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान बनेगा, इसका फाइनेंशियल प्लान बनेगा। 3 इसके वर्टिकल्स बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। आज जहां पे खड़े हैं, 15 साल बाद हम कहाँ पे खड़े होंगे, कौन कौन से इसमें हम कोर्सेस लॉन्च करेंगे, कौन कौन से हम पाठ्यक्रम यहाँ पे लेकर के आएंगे, पाठ्यक्रम कोर्सेज को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की एकेडमिक की जरूरत पड़ेगी, उन टीचर्स का रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होगा, और रिक्रूटमेंट करने के बाद में क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। किस प्रकार की लाइब्रेरी होगी, कैसी लेबोरेटरीज हमको चाहिए होगी, किस प्रकार के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स होंगे, किस प्रकार के क्लासरूम्स होंगे, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग होगा, कैसे कंप्यूटर्स लगेंगे, वाईफाई क्या होगा, आउटरीच क्या होगा, आउट क्या होगा, ये सारी प्लान एक प्रश्न कितनी मैं शेफाली सी आपकी तैयारी आवाज क्या डी जी, लेकिन आवाज मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अब आ रही है सर, बीच आ शेफाली रही में है सर, आ रही है सर। अब आ रही है जी, बीच में हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस था, अब क्लियर है जी। तो मैं ये कह रहा था कि आईडीपी जो है 15 साल का तैयार करना चाहिए और इसको मैंडेटरी बनाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। सारी इंस्टीट्यूशन जो अपने ढंग से जो है काम करना शुरू करें। दूसरा काम जो है वो है कि एक मर्जर का, कि सारी संस्थाएं जो है वो आपस में कोलैबोरेट करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन को भी आगे आना है और सरकार का हस्तक्षेप भी इसमें हमको करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन में सेंटर का सेंटर के साथ में, सेंटर का स्टेट के साथ में, स्टेट का स्टेट के साथ में, प्राइवेट का स्टेट के साथ में और स्टेट का प्राइवेट साथ में, इस प्रकार के एक मैट्रिक्स फॉर्म में मर्जर को शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए दोनों ही प्रकार की संस्थाएं, जो हमारी खुद की संस्था हैं उनको चिंता करनी होगी और राज्य का हस्तक्षेप इसमें बहुत आवश्यक होगा। इसमें केंद्र का और राज्य का दोनों का हस्तक्षेप आवश्यक होगा। यहाँ पर हो सकता है कुछ कानूनी
परेशानियां भी हों, कि बहुत सारी संस्थाएं जो कि केंद्र के कानून के द्वारा बनी हुई हैं, जितने हमारे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो केंद्रीय कानून के द्वारा बने हुए हैं, राज्य के विश्वविद्यालय राज्य के कानून के द्वारा बने हुए हैं, साथ ही साथ जो निजी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं निजी कानून के द्वारा बनी हुई हैं, और इसमें जो मिनॉरिटीज के द्वारा संस्थाएं संचालित होती हैं, जिसमें कि इस्लाम समुदाय की, क्रिश्चियन समुदाय की, सिख समुदाय की, जैन समुदाय की, इस प्रकार की जो मिनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं, दे आर गेटिंग सम स्पेशल एडवांटेजेस बीइंग द मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। उनके किस प्रकार समस्या आएंगी, इनके बारे में भी चिंता होनी, चर्चा होनी चाहिए। ये सेकंड स्टेप इसके बारे में शुरू होना चाहिए। तीसरा स्टेप जो कि कंपटीशन के लेवल पर है, हमने कुछ टारगेट्स फिक्स किए हैं। टारगेट फिक्स ये किए हैं, हम 100% तो हमको चाहिए, 100% जीईआर स्कूल एजुकेशन में हम चाह रहे हैं, और 50% जीईआर जो होगा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो 2035 तक 50% जीईआर होना चाहिए हायर एजुकेशन के अंतर्गत। अब प्रश्न ये, 75 साल में तो 26% जीआर कार से जी प्राप्त कर पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है, हमारे पास नीपा हो गया, स्टैटिस्टिकल इग्नोस्टिकेशन क्या बता पाया कि 50% जीआर के साथ में कितनी स्टूडेंट्स पॉपुलेशन पूरे भारतवर्ष में रहेगी। हमने थोड़ा सा काम किया, लगभग 26-27% जो जीआर है, उसके हिसाब से थंब रूल है, 3.5 करोड़ विद्यार्थी हमारे सिस्टम में आए हैं। अभी जो पूरा इकोसिस्टम हायर एजुकेशन का हमारे सामने दिखाई पड़ता है, उसमें हमको ये पता चला 1,000 तो यूनिवर्सिटीज हैं, 45 से 50,000 जो है वो कॉलेजेस हैं, लगभग 12.5 लाख, पहले 13.5 तब 12.5 लाख जो है लेक्चर रीडर प्रोफेसर हैं, और इसमें 3.5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो इसके बाद डबल मान लें तो 7 करोड़ विद्यार्थियों को प्रवेश जो है वो हम देने वाले हैं, यदि 50% जीईआर बढ़ाया जाएगा तो। सर इंटरनेट चल आपका तो हैक अगला हो भी गया। है, प्रधानमंत्री जी के पास नहीं बता पाया हूँ। हेलो, मैं जी इंटरनेट आ इज गया ओके। आ गया आ गया, वो बीच में आवाज नहीं आ रही थी, फिर आ गया। थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब है शायद। आ गया। अब जी बीच आ में जहाँ गया। मैं बैठा हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ जी। जी, मैं जी जी जी, अभी तो आवाज आ रही ना। हाँ जी तो आ मैं रही। कह रहा था कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन एनालिसिस जो है वो चाहे तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे करें, या इसको सेंट्रल लेवल पे करें, स्टेट लेवल पे, लेकिन होना चाहिए, जिससे पता तो चले। जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कितनी मात्रा में विद्यार्थी आने वाले हैं, तो एक समय यूनिवर्स जो है, एक मैक्रो लेवल का स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आता है 7 से 7.5 करोड़ का। अब इसका हमको डिवाइड करना पड़ेगा, स्टेट के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, और किस कोर्स में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो मैक्रो टारगेट्स हैं, केवल 50% कहने से ही काम नहीं चलेगा। ये मैक्रो टारगेट्स हमारे जो रिक्वायरमेंट है, नेशन में हमको एग्रीकल्चरिस्ट चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, फिलोसफर चाहिए, हमको कहीं
हमारे को प्रवेश देने की बात करेंगे और अपना जो टारगेट है 50% पूरा करना चाहेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कहते हुए कि अभी तक इस प्रकार का काम जो है नहीं शुरू हुआ है। मैंने लिख करके भी दिया है और कहा भी है सब लोगों को, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया। ये बात सच है कि मैं अभी तक कोई चिट्ठी नहीं लिख पाया हूँ एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। नहीं, हो सकता है मैं जल्दी ही वो भी काम शुरू कर दूं। अब जब टारगेट फिक्स हो जाएगा तो जैसा मैं बता रहा था, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के लिए हमें रिक्वायरमेंट फिक्स करनी पड़ेगी। इसी आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रेशियो तैयार हुआ है वो कहीं 1:10 है, कहीं 1:20 है। ये प्रोग्राम के हिसाब से 1:10, 1:20 के हिसाब से किया गया। यदि 1:20 होगा तो मान के चलेंगे लगभग 35 लाख टीचर्स, और 1:10 होगा तो लगभग 70 लाख टीचर्स। अब फिर प्रश्न आता है कि 75 वर्षों में हम 12.5 लाख टीचर्स दे पाए अभी तक। अब ये स्कीम जो है इसको 5 गुना 1:10 और लगभग 3 गुना समझिए कि 1:20 रेशियो में कैसे बढ़ा पाएंगे, कितनी बड़ी चुनौती है। एक समझिए खाली शिक्षक का ही चुनाव नहीं, एक गुणवत्ता वाला शिक्षक जो कि बात कर पाए, जो रिसर्च करा पाए, जो पढ़ा पाए, जिसकी भाषा अच्छी हो, जिसको विषय में ज्ञान हो, ऐसे लोगों को हम किस प्रकार से दे पाएंगे, ये बात सामने आती, इस पर काम होना चाहिए। फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोग्राम्स, उनके हिसाब से जो दूसरी सुविधाएं हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर लाना चाहते हैं, किस प्रकार के लाइब्रेरी हो, किस प्रकार के लेबोरेटरी हो, किस प्रकार के स्पोर्ट्स हो, किस प्रकार क्लासरूम है, ये सारी बातें जो हमको एक साथ तय करनी पड़ेगी, एक माइक्रो लेवल पर करनी पड़ेगी। और माइक्रो को समेशन करते हुए एक मैक्रो लेवल पर हमको इसका प्लान बनाना पड़ेगा, जो अभी तक हो नहीं पाया है। हरियाणा में काम बहुत अच्छा चल रहा है। पटियाला जी काम करें, कैलाश शर्मा जी भी वहां पर आ गए हैं, लेकिन कितना काम हुआ है वो है हम चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जो एजुकेशन थी वो तो मैक्रो लेवल की थी, सारे विषय लेकर काम करते थे, लेकिन जो है वो धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होता रहा, और स्पेशलाइज चक्कर इतना अतिशायित हो गया हमारा, और यहाँ तक हुआ कि जो समाज की जो समस्याएं होती हैं, सोसाइटी से ही जो बाय एंड लार्ज हम डिस्कनेक्ट हो गए। व्यक्ति डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, टेक्नोक्रेट बन गया, लेकिन समाज की समस्याओं से बिल्कुल अलग थलग हो गया। तो इसमें ये सोचा गया कि हम विद्यार्थी को भी सुविधा देंगे कि वो जिस विषय में गति है वो तो ठीक ही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे विषयों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इसका पूरा प्लान हमने मध्य प्रदेश सरकार को दिया, वो पालन भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी पालन करने वाली है। अपनी फैकल्टी का समझिए जो पेपर्स हैं वो तो रहेंगे, दूसरी फैकल्टी के भी आपको एक पेपर चुनना पड़ेगा। और एक जेनेरिक सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन होगा। जेनेरिक सब्जेक्ट्स में भी आप योग के सब्जेक्ट में, आयुर्वेद के भी सब्जेक्ट, उसमें एग्रीकल्चर के भी जोड़ दिए हैं, उसमें सोशल साइंस जोड़ दिए हैं। जो विषय जिसकी रुचि हो जाए, कम से कम कुछ उसको ज्ञान होगा, बाकी तो अनुभव के साथ वो सीख ही जाता है। यहाँ पर जो सबसे डिफिकल्ट काम है, मैं बार बार मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन की बात जब मैं करता हूँ तो ऐसा लोग मान के चलते हैं कि कुछ इकोनॉमिक्स में, कुछ पॉलिटिकल साइंस को जोड़ दीजिए, कुछ समझिए कि सोशियोलॉजी को जोड़ दीजिए, कुछ हिस्ट्री जोड़ दीजिए, तो इंटरडिसिप्लिन हो जाएगा। लेकिन क्या हम जोड़ें, क्या चीज क्या जोड़ें? कुछ जोड़ने की बात सब कह देंगे, लेकिन क्या जोड़ा जाए इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी का, क्या जोड़ा जाए इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री का, क्या जोड़ा जाए पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स का? यहाँ पर समस्याएं आने लगी, क्योंकि ऐसे जानकार लोग हमारे पास में उपलब्ध नहीं है जो कि एक ऐसा मॉडल बना के दें जो कि रचपच जैसा जाए।
रचने पचने वाली बात मैं कहता हूँ, जब रामदेव महाराज अपनी खिचड़ी की बात कहते हैं तो उसमें गेहूं, चावल, जौ इतना सब मिला खिचड़ी बनाते हैं। खाली पानी में रख खिचड़ी नहीं बनेगी, उसे पकाना पड़ेगा। जब पकेगी तो गेहूं, जौ, चावल, मूंग से इकट्ठे एकदम मिल जाएंगे, और उसके बाद में खिचड़ी तो एक का स्वाद दूसरा, दूसरे स्वाद तीसरे, ऐसे मिल के आएगा, तब जाकर खिचड़ी बनेगी। वैसे खाली रखने से खिचड़ी नहीं बन जाया करती। तो जो पकाने वाली बात है, उसमें हमें कहीं ना कहीं हमारा जो देशज ज्ञान है उस ओर जाना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आधुनिकतम ज्ञान और देशज ज्ञान, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, और इसका जो मैंडेट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, इसके दो मैंडेट हैं। एक तो एजुकेशन दृष्टि से ग्लोबल सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश करना है, और दूसरा जो एक सामान्य अच्छा नागरिक बनाना। नागरिक बनाना फंक्शनल रिलेशनशिप एजुकेशन के विद सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एस्टैब्लिश करना, एंड टू एस्टैब्लिश इंडिया एज द विश्व गुरु, जिसके पास में पदवी थी। इस पर कई बार मैंने बोला विश्व गुरु बनने की पदवी जो है वो हमारे पास में हमको मिल सकती है, क्यों विदेश के जितने भी राष्ट्र हैं, जैसे विशेषकर इंग्लैंड की बात है, अमेरिका की बात है। इंग्लैंड ने विश्व गुरु की पदवी छीनी हमसे, लेकिन इसलिए छीन पाई 80 देशों को उपनिवेश बनाया, अपना गुलाम बनाया, वहां अपनी भाषा, संस्कृति, ज्ञान सब थोपता चला गया और स्टैब्लिश किया। अमेरिका ने उसे छीनने की कोशिश की। अमेरिका इसलिए महत्व देता हूं, उसने अपने रिसर्च के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ उसने प्रकारांतर से विदेशों को, दूसरे देशों को गुलाम बनाया, अपनी सैन्य शक्ति, सैन्य सामग्री के निर्यात के आधार पर उसने दूसरा काम किया। तो दोनों के पास में अपना कोई इंडिजिनस नॉलेज नहीं है। भारतवर्ष वो है जिसके पास में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, कालिदास, महाभारत, रामायण, कालिदास, भास, भभूति, भारवी, पाणिनि, पतंजलि जैसे लेके निरंतर चलने वाले आ रही परंपरा अभी तक, दिनकर से लेकर के और समझिए प्रेमचंद से लेकर के तुलसीदास, ऊपर कबीर, रहीम, रसखान, एक बड़ा पूल, 1.5 लाख लोग हमारे पास में पूल है, और सबके सब में समाज विज्ञान भी है और आधुनिकतम विज्ञान के सूत्र उसमें दिए गए हैं। उसको हम आधार बना करके और आधुनिक चीजें उनको जोड़े, उनको जोड़ करके जो बनेगा वो समझिए समग्र अंतर अनुशासनीय जो है ज्ञान हमारे पास बन पाएगा। अब यही प्रश्न उठता है कि हमारे पास जानकार कितने लोग हैं जो कि संस्कृत को भी जानते हो, जो सोशियोलॉजी भी जानते हो और जो केमिस्ट्री भी जानते हो। ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते हैं, ऐसे जानकार लोग हैं, उनको सम्मान में बैठाना चाहिए। फिर हम देखेंगे, जब हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वो अर्थशास्त्र नहीं जो इकोनॉमिक्स है, वो अर्थशास्त्र है धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला अर्थ है, जिसमें कि पूरा समाज विज्ञान, भौतिक पदार्थ विज्ञान आ जाता है। उसमें प्रशासन तंत्र भी है, उसमें राजतंत्र भी है, उसमें कूटनीति भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, सारी चीज उसमें आ जाती है। जब महाभारत का शांति पर उठा कर देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे पूरी पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस है, सब कुछ है। जब कालिदास और रघुवंश उठा कर देखते हैं उसमें सारी चीज आ जाएंगी। तुलसीदास की रामचरितमानस और उत्तरकांड पढ़िए तो गुड गवर्नेंस, राम राज्य कल्पना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारे पैरामीटर्स उससे ज्यादा उसे मिल जाते हैं। मेरा कहना है इस आधार पर हमको काम करना पड़ेगा। फिर यहीं पर ही बात एक और आ जाती है, जब मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की हम बात करते हैं तो उसमें पर्पस जो है मिसिंग हो जाता है। हमें पर्पस की बात करनी पड़ी। उदाहरण के तौर पर हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अभी तक क्या हुआ, जैसे बॉटनी को अलग पढ़ाते रहे, जूलॉजी को अलग पढ़ाते रहे, बाद में बायोलॉजी, पहले बायोलॉजी थी उसने 2 शब्द थे, अलग अलग कर दिया, उसको उठाकर बायोसाइंसेस बना दिए, तब भी दोनों सब्जेक्ट अलग अलग, बॉटनी में साइंस अलग और जूलॉजी में साइंस अलग। जब बायोटेक्नोलॉजी में आए तो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के इनपुट्स जो है वो पेड़ों में अलग, जानवरों अलग, मतलब बॉटनी की बायोटेक्नोलॉजी अलग और जूलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी अलग, दोनों को अलग अलग करके ही चलते चले आए। मेरा कहना वो दिन कब आएगा जब जेसी बोस के स्टाइल पर हम काम करेंगे और कहेंगे सारे प्राणियों में एक ही तत्व विद्यमान होता है। प्राणियों में समझिए कि भगवान होता है, सारे वनस्पतियों में प्राण होते हैं, वनस्पति और जंतुओं में प्राण होते हैं। जब एक ही तत्व की
प्रधानता है और 84 लाख योनियों की बात भारतवर्ष ने की है, तो आप उनको उद्भिज उद्भिज के अनुसार, श्वेत के अनुसार, योनि के चारों वर्गों में वर्णन करके हम 84 योनियों में परस्पर एक रूपता ला करके हम कब उस विज्ञान के स्थापित करेंगे? यदि नहीं कर सकते हैं तो होलिस्टिक अप्रोच या हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मॉडर्न टाइप का हो जाएगा। हमारे नहीं हो पाएगा। बायोडाइवर्सिटी एक करके चलिए, और देना चाहता हूँ। हमारे सब पॉलीमर्स अब नहीं, हमने दिए पॉलीमर्स, तो नेचुरल पॉलीमर प्लांट्स का है और केमिकल पॉलीमर दोनों मिलकर के कोई एक होलिस्टिक मैक्रो पॉलीमर बनाने की बात चेष्टा करनी चाहिए, दोनों मिलकर के काम करें। इस प्रकार का जब अनुसंधान होगा तब आप पाएंगे हम सही मायने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उपयोग कर पाएंगे और इस प्रकार के पाठ्यक्रम बने और पाठ्यक्रमों का भी निर्माण इस प्रकार से हो कि हम स्कूल में क्या ले जाएं, मिडिल लेवल में क्या ले जाएं, हायर एजुकेशन में क्या ले जाएं, इसकी चिंता जो है करनी होगी। ये सबसे बड़ा काम है। देखिए बहुत सारे इसमें जो बात कहेगी कि यूजीसी बंद हो जाएगा या आईसीटी बंद हो जाएगा, अभी तक तो बंद हुआ नहीं, कब बंद होगा पता नहीं क्या होगा। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा एक, उससे कई वर्टिकल्स होंगे, उसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, एक एग्रीगेशन अथॉरिटी बनेगी, इसमें जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगी जिसका काम होगा पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, पाठ्यक्रम मॉनिटरिंग करना। मेरा कहना है हायर एजुकेशन कमीशन में किसी जज को बैठा दो, रेगुलेटरी अथॉरिटी में किसी ब्यूरोक्रेट को बैठा दो, सब में आप सपोर्ट दो। जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है वो भाई हम प्रोफेसर्स के लिए आप स्पेसिफिक कर दो, जिसमें जानकार लोग बैठे जो पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे, उन क्रियान्वयन करें। बाकी चीजें जो है दूसरे लोग कर सकते हैं, ये पाठ्यक्रम की बात जो है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो केवल हम प्रोफेसर ही कर सकते हैं, जानकार लोग कर सकते हैं। ये काम इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसके अंतर्गत आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन की बात जब आती है तो इसमें एक बात जो 6% तो जीडीपी का पैसा आएगा। अब किसी पूछो भाई 6% जीडीपी कितना हो जाएगा, कितने लाख करोड़ होगा, नहीं बता पाते भाई। और मैं खुद चुका हूं और जी हम डॉलर इकोनॉमी की बात जो आदरणीय करते हैं, 30% 30 करोड़ रुपए हो। अब 30 लाख कहां से आएगा? 30 लाख करोड़ में कितना है, स्टेट का कितना हो, हम सीधे से भी इसकी भी एनालिसिस हो जानी चाहिए। लेकिन देखिए बिना पैसे के काम नहीं होता, बात स्पष्ट है, क्योंकि जो प्रोफेसर अपॉइंट करने वाले हैं उनको सैलरी चाहिए, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं उसके लिए समझिए कि पैसे चाहिए, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि यदि हम बड़े संख्या में और बड़ी स्थिति में संस्थाओं को विकसित करना चाहते हैं तो ये चीज भी आवश्यक हो जाएगी। इसी तरीके से जो विदेशी संस्थाओं के भारतवर्ष में प्रवेश की बात हो रही है, प्रथम दृष्टया तो समझिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। जब पहली बार आई तो मैंने इसको क्रिटिसाइज किया था, नहीं इट्स नॉट गुड। एक तरफ हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो विदेशी जो विश्वविद्यालय उनको लाने की बात कर रहे हैं। फिर मैं जब धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारे विद्यार्थी तो बाहर जा ही रहे हैं, जिसकी बात शुरू मैंने की भी थी, तो कितना सामाजिक मनोवैज्ञानिक परेशानी होती है उनको, परिवार वालों को, लेकिन जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। साथ ही साथ हम जो है रेमिट करते हैं यहाँ से, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रेमिटेंस होता है, बहुत बड़ा सोर्स होता है। यदि उनकी संस्थाएं यहाँ पर आती हैं, थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो वो संस्थाएं खुलें कहाँ पर, नंबर 2 उनका फी स्ट्रक्चर क्या हो, तीसरा कोर्स स्ट्रक्चर क्या हो।
कोर्स स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, तीन चीजों को यूनिवर्सिटी आती हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। उससे हमारी संस्थाओं का भी जो है वो विकास हो सकता है, सुधार हो सकता है, और संसाधन जो बाहर जा रहे थे उनको रोकने की बात होगी। इसमें भी स्टेट और सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट से मिलकर के काम करना होगा। एक बात जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आप सबने सुनी भी होगी, इस पर भी काम शुरू है। जिस प्रकार से एक क्लियरिंग हाउस होता है, आरबीआई जो है वो क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। क्लियरिंग हाउस में क्या होता है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, उनके क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं, और इस प्रकार से कोई संस्थाएं जो है वो भिन्न भिन्न कोर्सेज यदि पढ़ा रही हैं, वहां पर बच्चों के पास में कोर्सेज नहीं है, दूसरी संस्था से करना चाहते हैं, तो एक समझिए कि बैंक होगा जिसमें क्रेडिट्स जो अर्न किए जाते हैं उन क्रेडिट्स को जोड़ते जाएंगे और जब पर्टिकुलर क्रेडिट मिल जाएंगे। यहाँ पर एक सुविधा जो ये दी गई है कि बच्चा जो है, जिसमें कि एंट्री और एक्सिट की जो सुविधा दी गई है, तो एंट्री एक्सिट के भी दो पार्ट इसमें आते हैं। एक तो 1 साल किया चला गया सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद डिग्री मिलेगी। यदि मान लीजिए अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करनी है, इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त, मान लो एग्रीकल्चर का कोई विद्यार्थी है, उसने थ्योरी की क्लासेस तो पढ़नी और वो किसान का बेटा है, तो अगर मान ली पर्टिकुलर पूरी स्ट्रेटेजिक फॉर्म में लेकर के वो जाता है, अपने ही खेत पे काम करने जाता है, तो वहां की पूरी चीजें लेकर के प्रैक्टिकल ग्रुप में लेके आता है, तो उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। ऐसी सुविधा इसके अंतर्गत दी गई है, देखिए महत्वपूर्ण बात आई है। इसी प्रकार से जो औपचारिक शिक्षा में जो हमारे अनौपचारिक क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, हम जानते हैं हमारे समाज में संगीत के क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, औपचारिक डिग्री नहीं है, वो एमयूज भी नहीं है, वो पीएचडी भी नहीं है, लेकिन तबला बहुत बढ़िया बजाते हैं, हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाते हैं, शहनाई बहुत बढ़िया बजाते हैं, तो उनको क्यों ना क्लास में ला करके पढ़ाने के लिए उनको एंगेज किया जाए हर क्षेत्र में। तो हमने किसको तैयार किया था, रीजनल पूल ऑफ रिसोर्सेज, रीजनल पूल ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज, ये नाम दिया था। आप देखिए हर एक जगह पर आप पाएंगे आपके लॉयर्स बहुत अच्छे हैं, वकील, उनको लॉ एजुकेशन में जोड़ेंगे तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। कुछ जजेस रिटायर होकर के रहते हैं, उनको अपने जोड़ दें। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, डिग्री नहीं उनके पास में, लेकिन आप वेद उनसे उच्चारण करवा लीजिए, वेद की व्याख्या करवा ली, वो आप विद्वान, उनको संस्कृत पढ़ाने के लिए क्यों नहीं। योगाचार्य, कोई डिग्री उनके पास में नहीं है, हर तरह का आसन करा लिए, मुद्रा करा लीजिए, प्राणायाम करा लीजिए, बंद लगवा लीजिए, सारी क्रियाएं करने में दक्ष हैं, उनको इन्वॉल्व करिए। तो ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करने की सुविधा भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, कि बहुत अधिक हमको अवसर इसने प्रदान किया है। These opportunities shall have to be harnessed by we professors, administrators, students and all stakeholders related to higher education. ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने दी गई है, इसको एक अनुशासन के रूप में, एक बंधनकारी व्यवस्था के अंतर्गत मैंडेट के रूप में हमें यूज करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा हमको लगता है कहीं हमारे हाथ से जो है वो ये बस छूट न जाए। और एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में भी काम चालू है काफी, तो सोशल साइंसेस का काम जो है वो ICSSR को दिया गया, वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो इसके भी कई मैंडेट स्पष्ट है, रिसर्च केवल रिसर्च के लिए नहीं, अभी जो रिसर्चेस हम लोग कर रहे हैं वो उनकी उपयोगिता नहीं है, या तो नॉलेज जनरेशन के लिए, या फिर समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए, या जो स्टेट मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में सहायता करने के लिए। तीन हमारे पास इसके साफ साफ उद्देश्य है। जब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे मैं अलग से आपसे बात करूंगा। आज के समय में इस समय जो आपने मुझे
व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मैंने क्रम बताए हैं, आईडीपी से शुरू करते हुए मूल्यांकन एडी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, इसको, इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, साथ साथ कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन एनालिसिस करना, कोर्स का कंटेंट्स किस प्रकार से बनाना है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाना है, टीचर्स किस प्रकार से आएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम्स किस प्रकार से होंगे, मर्जर किस प्रकार से किया जाए, कुछ चीजें हमने संकेत के रूप में आपको बताया है यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें से कुछ चीजें ग्रहण करेंगे। बहुत सारी चीजें आपने पहले भी सुनी होंगी। इसमें यदि कुछ शंका अगर होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी जितनी सहायता हो सकता है करने का प्रयास करूंगा। हमारे इस ग्रुप में जो है बारीलाल जैन जी जुड़ते हैं, रीवा से हमेशा जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। शशांक तिवारी जी लखनऊ जुड़े हुए हैं। खुशवंत जी चंडीगढ़ में बैठे हुए, वहां से जुड़ते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करता हूँ। धन्यवाद शेफाली जी सर, प्रणाम कर रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही एक डीप क्रम वाइज चलने का प्रोसेस आपने हमें बताया कि हमें किस तरह से इसको क्रियान्वयन करना है, इसकी रूपरेखा हम किस तरह से बनाएं, और किस तरह से हमें जो आपने हमें स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वी ऑल शुड बी वेरी कंसिडरेट दैट एजुकेशन हैज टू बी केप्ट separate from the politics, and the politicization of the education has to be stopped at every point in the higher education. And while we are implementing this national education policy into our institutions, we have to develop a 15-year plan, which is an institutional development plan, in which we have to decide about what courses are we going to implement, and keeping in mind the SDGs and the GERs, we have to capture at our lowest level that the students should take admission into the education at every point, at every level. We have to avoid every dropout, and that is how we have to plan our courses, and we have to deliver those courses with the right kind of infrastructure and the right kind of the mode, and with all the technological aids that we can provide through. And also the merger metrics, sir, that you have talked about among the different institutions and the different supporting agencies like state and central government, and how we can go about it, because I think this was the point which nobody has thought of. And I have never heard of it, even how to think about the merger metrics about it, sir. And that was really very incredible. And I think it will give a lot of insights and a lot of thought-provoking ideas among the teachers group, those who have joined here, like how they can go about it and how they can take out the best from this policy. And also how to establish in establishing India as a superpower, भारत को विश्व गुरु बनाने के स्तर पर हम किस तरह से हम अपनी पुरानी धरोहर जो एंशिएंट इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स है हमारे, how we can implement those systems by integrating the modern techniques and the modern knowledge which is available with us. And I think that will make the base for all our students. कल ही सर मैं कहीं बैठी हुई थी और मुझे ये सुनने में आया कि वो कह रहे थे कि कितनी शेमफुल बात है कि टीचर्स को अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहा नहीं, ये शेमफुल बात नहीं है कि टीचर्स को अंग्रेजी नहीं आती। ये एक हम लोगों ने जो ये बनाया है अपने दिमाग के अंदर स्तंभ की अंग्रेजी ही एक क्वालिटी का मानक है, ये नहीं होना चाहिए। ये हमें पिलर्स तोड़ने हैं, एंड this integration of indigenous knowledge will help us to break those barriers. And how we have to, एक चीज बहुत और आपने अच्छी बताई सर कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करें अपने हायर एजुकेशन की एजुकेशन को विद द स्कूल एजुकेशन। दैट मीन्स इट शुड बी अ प्रोग्रेसिव क्यूरिकुलम डेवलपमेंट हमें करना है, जो कि और उसी बेसिस के ऊपर एबीसी, कंप्यूटेशनल, स्टैटिस्टिकल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। So lot of takeaways from this session, lot of ideas, lot of directions that we can take in the implementing with the right spirit that we are looking forward, and the transformation in our education system can be brought in, sir. We are really thankful for that very insightful
and very thought provoking ideas that you have given. आपका एक्सपीरियंस और आपका जो ज्ञान है वो इसके अंदर पूरी तरह से हम लोगों को दिखा रहा था कि कैसे ये जर्नी चलनी चाहिए. वी कैन विजुअलाइज इट सर. वो एक स्टोरी की तरह हम विजुअलाइज कर पा रहे थे. बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा ही प्रेरणादायक. और कुछ सवाल सर पार्टिसिपेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, अगर आप हमें अनुमति दें तो हम 2-4 सवाल रखना चाहेंगे. अब इन्होंने एक डॉक्टर संध्या जोशी जी हैं, ये पूछ रही हैं कि देयर शुड बी रिसर्च प्योरली फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स which are existing and then solution should be there to solve a particular problem. Only then PhD should be considered for degree. ये शायद इनका एक सजेशन है, सवाल नहीं है. नहीं, दोनों चीजें कह दीजिए उनको जी. और एक हमारे पास और आया हुआ है सर, डॉक्टर जी. आवाज एक पार्ट सर आपका इंटरनेट हैंग हो गया है शायद. है कि इसका काम होता है जनरेशन, नॉलेज जनरेट हो सकता है. आवाज आ रही शेफाली, हमें ऑडिबल? शेफाली मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है सर, अब आ रही है. वो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए हो जाता है, आधे 1 मिनट के लिए ना. नाउ इट्स ऑडिबल. हैंग हो जाता है. हेलो जी अब आ रही है सर आपकी आवाज, अब आ रही है सर. मैं कह रहा था जी कि समझ नॉलेज जनरेशन हमें हमारा नॉलेज सबसे पहला काम है. उसके बाद की प्रॉब्लम कंफर्मेशन. और हर एक समझिए कि रिसर्च के 3 उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं. एक उद्देश्य आपका सही है कि समाज की समस्याओं का निदान करना. ठीक है जी. बहुत बहुत धन्यवाद सर. वेरी वेरी ट्रू. सबसे पहले हमारे एक चीज तो आपने बिल्कुल ही क्लियर कर दी कि अगर आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो समाज की प्रॉब्लम्स के साथ कम्युनिटी को जोड़ते हुए करें. अदरवाइज हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग कर देते हैं, हम अपने ही निश के अंदर रहते हैं. डॉक्टर मैथ्यू है सर, वो पूछ रहे हैं कि ये जेनेरिक कोर्सेज को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हाउ टू इंट्रोड्यूस देम अंडर द क्रेडिट प्लानिंग स्कीम्स. उनका सब पूरा प्लान बना हुआ है. आप देखिए 3 तरह के स्ट्रक्चर बनाए हमने. एक तो आपके जो कोर्स हैं फैकल्टी के, आपको जो जिस फैकल्टी में है. दूसरा जो है दूसरी फैकल्टी का एक पेपर लेंगे. एक जेनेरिक लेंगे, उसके कोर्स कंटेंट्स में टोटल मान लो कि बीए हम कराना चाह रहे हैं. बीए में 2 पेपर्स आपकी फैकल्टी के, एक पेपर दूसरी फैकल्टी का, एक पेपर जेनेरिक का और एक पेपर प्रोफेशनल वोकेशनल स्किल का. कितने हो गए? 5 पेपर्स लेंगे. सबके क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सबकी जो हर एक व्यक्ति की जो अपनी जो अंदर की क्वालिटी होती है, अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके हिसाब से वो उनका चुनाव करेगा. जैसे उसको इकोनॉमिक्स में लेना है, 2 पेपर्स लेना, जब बीए करना है तो 2 पेपर्स हो गए इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस से हो गए, 2 सब्जेक्ट से वो हो गए. एक सब्जेक्ट किसी और ले सकता है, ह्यूमैनिटीज ले सकता है, साइंसेज ले सकता है, वो समझिए कि दूसरी फैकल्टी होगी. एक जेनेरिक हो गया. जेनेरिक में आपके जो योग इत्यादि हो गए, बहुत सारे इसके विषय है. तो एक स्किल से जुड़ा हुआ है ना. तो इसकी पूरी कंप्लीट प्लानिंग बनी हुई है हमारे पास में. आप चाहें भिजवा देंगे हमारे पास. मैं सॉफ्ट कॉपी भी हमारे पास. Okay, that will be really kind of you. We will circulate it among all these participants. Yes, I can share. जी. एक ये हमारे यहाँ से लॉ डिपार्टमेंट से है, वो पूछ रहे हैं सर कि ये जो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा एनईपी और मर्जर्स हो रहे हैं जैसे सब्जेक्ट के कि एबीसी में, जिसमें हम यूजुअली मेजर और माइनर कर रहे हैं कि इतने क्रेडिट्स आपको चाहिए इफ यू वांट टू बी ग्रेजुएट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर स्ट्रीम. तो ये जब रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो जो कंपटीशन एग्जामिनेशंस होते हैं सर, जैसे सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, लॉ के एग्जाम्स होते हैं, तो क्या इनकी भी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, इन सारे एग्जामिनेशंस की भी इसके बेसिस पे? देखिए उसके बाद में करनी पड़ेगी.
क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो इकोसिस्टम अलग ही है। शेफाली, हम जानते हैं कि मैं तो जाता हूँ यूपीएससी बोर्ड में, यू नो एवरीथिंग, पर्सनालिटी टेस्ट में कई सालों जा रहा हूँ। जो आईआईटी वाले जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के क्वालिफाई करते हैं, जी आईआईटी वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब लेके सब करते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लेटेस्ट स्टेज में हमको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो कि यूपीएससी का और हमारे जनरल एजुकेशन का भी है। शेफाली, मुझे एक दूसरे प्रोग्राम में जोड़ना है अभी तुरंत ही, जी ठीक है 12:15 सर। पे, तो मुझे अनुमति दे दो, 12 फोन आ रहा है वहां से। जी सर, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आज के बड़े ही आदरणीय जो कुलगुरु हैं प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी का, कि उन्होंने इतना ही इलैबोरेटिव और बहुत ही सुंदर, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करके सर आपने जो हमें एनईपी का दिया है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन द राइट वे। यू हैव गिवन अस लॉट ऑफ पिलर्स हियर। So on the behalf of all the participants, on the behalf of the university, Human Resource Development Center, and on my own personal behalf, sir, I extend heartfelt thanks to you for sparing your very valuable time for a very thought-provoking topic today, sir. And we hope that we will soon invite you on another topic related to the research and the quality of research. And we thank you again, Well, sir. I love to be with you. Thank you, sir. Okay, Thank you. Shefali, thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Yeah, thank you. There are certain announcements for the participants here. We have shared a feedback link on your mail ID for this program. After filling this feedback form, you will be receiving your certificates, because that include your information, detailed information for this program as well. So kindly fill that feedback form for the issue of the certificates, and we are really thankful for joining with all of you for joining us in this one-day workshop on the implementation of the NEP 2020 with us. I could see many of them, those who have already been there and joined us. Nilesh is there, and then Shivali and many other people. Sonu is there, and Anita and Anita Atwalji, all are there. Those who have been joining us, and I hope that you will we will keep updating you on the various such kind of programs time to time that we keep on organizing. And once again, thank you all. And I hope that the questions which are left, I would like to share with all of you, those who have questioned us. I would like to put forth these questions before Bajpai sir. And once I receive the answers from him, I will share with all of you through the mail. Thank you all. Thanks a lot. Namaskar.